Bismillahirrahmanirrahim. Infinite Dramatic Series. Chapter number 5. Sequence and Series. आप अल हसन वालों की यह बुक परचेज करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जी. फॉर बीकॉम पार्ट 1 रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम्स, और ये पब्लिशर्स है जी. Infinite Dramatic Series. We have considered the sum of dramatic series having finite numbers of terms. भाई पहले हम क्या करते हैं, we have considered the sum of dramatic series having finite number of terms. भाई जिसकी number of terms finite है उसको हम already discuss कर सकते हैं. If the series having unlimited numbers of terms in which common ratio is greater than 1, then sum of such infinite dramatic series is also infinite. भाई देखें ये बड़ा सोलह खाता बताया जी इसने. If the series have unlimited number of terms, if the series have unlimited number of terms in which common ratio is greater than 1, जिसमें common ratio greater than 1 होगा, then sum of such infinite dramatic series is also infinite. G. For example, 2 plus 4 plus 8 plus 16 up to so on. Its sum is not exist or infinite, where r is greater than 1. On the other hand, consider the dramatic infinite series. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to so on, r is less than 1. We may observe that each number of terms increasing, the value of each succeeding terms decreases, and we can also note that as we take more or more terms, then their sum gets closer and clear to 1. That is, sum of infinite dramatic series approaches to 1. We approaches to 1. From the above discussion, it is clear that certain infinite dramatic series have sum and others have not. Now we want to find the formula for finding the sum of infinite dramatic series in which ratio is less than 1. We know that to find the sum of infinite dramatic series we have, आपको पता है Sn का फार्मूला क्या है, a into 1 मनफी r की पावर n over 1 मनफी r. भाई we have Sn बराबर है a into 1 मनफी r की पावर n over 1 minus r, 1 मनफी r की पावर n over 1 मनफी r, where r is less than 1. भाई since r की absolute value less than 1 है, therefore as the number of terms approaches to infinite, then r की power n approaches to 0. G. r की power n approaches to 0 when n approaches to infinity. भाई जब n infinite होगा तो r की value 0 हो जाएगा. तो so we have s बराबर है a over 1 minus r. तो भाई ये वाला फार्मूला बन गया sum of infinite terms वाला. sum of infinite terms का फार्मूला a over 1 minus r. भाई sum of infinite term का फार्मूला क्या होगा, a over 1 minus r. भाई सम ऑफ इन्फिनिट टर्म का फार्मूला क्या होगा, a over 1 minus r. भाई सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स का फार्मूला क्या होगा, a over 1 minus r. नाउ एग्जांपल 1, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ इन्फिनिट ड्रामेटिक सीरीज 1 plus 1 by 3 plus 1 by 9 up to so on. भाई यहाँ पे a क्या 1, रेशियो क्या 1 by 3. भाई रेशियो क्या है 1 by 3 और विच इज लेस देन 1. भाई रेशियो किस तरह की देगी, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट जी. जब भैया सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो वी गेट 1 by 3. सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट वी गेट 1 by 3 जी. अब एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होगा जी, भाई जन एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होगा, a over 1 minus r एंड वी गेट 1.5 जी. जी शो दैट सम ऑफ इन्फिनिट ड्रामेटिक सीरीज इज दिस. भाई नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास है, a हमारे पास अवेलेबल है 0.23 और रेशियो का होगा सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट. भाई एस इन्फिनिटी का फार्मूला का a over 1 minus r.
भाई सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला क्या होगा, ए ओवर 1 माइनस आर, वैल्यूज पुट की तो वी गेट 29 ओवर 19, 23 ओवर 99। भाई याद रखना सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला क्या होगा, ए ओवर 1 माइनस आर। भाई सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स का फार्मूला क्या होगा, ए ओवर 1 माइनस आर। भाई ये वाला फार्मूला याद रखना, एस इन्फिनिटी बराबर ए ओवर 1 माइनस आर। भाई सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स का फार्मूला क्या होगा, ए ओवर 1 माइनस आर। जी एग्जांपल 3, कन्वर्ट दी recurring decimal 2.56 into an equivalent common fraction या वर्गर फ्रैक्शन। भाई ये हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल। भाई रिकरिंग डेसिमल, भाई ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। भाई ये हमारे पास क्या, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना है जी, इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन या वर्गर फ्रैक्शन। भाई हमारे पास 2.56, इसको 2 को अदा करें, 0.56 को अदा करना। तो भाई ये 2.56, तो आप जब थोड़ा सा देखें 2.56 जी। भाई जरा देखें 2 को अदा कर दिया, 0.56 को अदा कर दिया और ऊपर कैरी बार, इसका मतलब 0.56 0.56 0.56 0.56 अप टू सो ऑन जी। भाई आप ये करें 2 अदा, ये 0.56 0.0056 0.0056 अप टू सो ऑन जी। भाई इस चीज को 0.56 को आप 0.56 लिखें प्लस 0.0056 प्लस 0.0056 अप टू सो ऑन। भाई ए हमारे पास है 0.6 रेशियो का नहीं, सेकंड बार फर्स्ट। तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या था, ए ओवर 1 माइनस आर। भाई एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होगा, ए ओवर 1 माइनस आर। जी एस इन्फिनिटी का फार्मूला था ए ओवर 1 माइनस आर। आपने ए की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, इसको सिंप्लीफाई करें एंड वी सी G, we get 2 and 56 over 99. Find the vulgar fraction or common fraction of a recurring decimal fraction. G, find the vulgar fraction or common fraction of the recurring decimal 0.5159. 0.159, तो देखें 0.159 को 0.159 159 अप टू 100 लिखते जाएंगे। इसको आप 0.159 प्लस 0.000 159 प्लस 0.60 एंड 159 जी 159 लिखें जी, और भैया सो ऑन जी, सो ऑन चलता जाएगा जी। भाई यहाँ पे एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होगा, ए ओवर 1 माइनस आर। भाई ए ओवर 1 माइनस आर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 159 ओवर 999 जी। Find the vulgar fraction या common fraction of each of the decimal fractions. भाई 0.159 है, तो इसको 0.159 159 159 अप टू 100 जी। भाई ए ओवर क्या होगा 1 माइनस आर। भाई ए ओवर क्या होगा 1 माइनस आर, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब एग्जाम्पल 5, कन्वर्ट दी रिपीटिंग डेसिमल टू रैशनल नंबर्स। ये हमारे पास है जी, ये नंबर है 0.036 0.036 0.036 आप तो जी। इसको भाई आप इस तरह देखें 0.036 0.000 आगे 036 0.60 भाई ये 60 आएगा जी, और आगे आएगा 036 आप तो सो ऑन जी। यहाँ पे ए ओवर 1 माइनस आर, तो हल करेंगे तो 4 ओवर 111 निकल आएगा, 4 ओवर 111 निकल आएगा। नाउ व्हाट प्रॉब्लम वी हैव, मैं कहता है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 27 मीटर्स। भाई ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 एंड इट rebounds 2/3 of the distance it falls. If it continues to fall the same way, what distance will it have before coming to rest? Before coming to rest, a ball is dropped from a height of 27 meters and it rebounds two-third of the distance it falls. It rebounds two-third of the distance of fall. If continues to fall in the same way, what the distance will it travel before coming to rest? What travel? ठीक है जी, तो देखेंगे a ball is dropped from a height of 27 meter.
भाई 27 मीटर से आपने ड्रॉप किया एंड इट रिबाउंड 2/3 ऑफ द डिस्टेंस। भाई 2/3 तक ऊपर जाएगा, रिबाउंड का में वापस जाएगा। इट कंटिन्यूज टू फॉल इन द सेम वे, वो इसी तरह गिरेगा, ऊपर जाएगा। वट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। भाई इधर देखिएगा, इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल वी सेपरेट राइज एंड फॉल डिस्टेंस। भाई ए हमारे पास 27 है, रेशो हमारे पास 2/3 होगा जी, 2/3 है ना। अब एस इन्फिनिटी का फार्मूला ए ओवर 1 माइनस आर। भाई हल किया तो हमारे पास आ गया 81। भाई राइज डिस्टेंस क्या होगा जी, भाई राइज डिस्टेंस क्या होगा, भाई ए हमारे पास होगा 27 इंटू क्या होगा जी 2/3, तो 18 आएगा जी। भाई राइज डिस्टेंस क्या होगा, 27 टोटल था और उसको बजाय 2/3 का साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 18 आ गया जी, क्योंकि रेशियो क्या थी हमारे पास 2/3। अब एस इन्फिनिटी बराबर ए ओवर 1 माइनस आर, तो आएगा 54। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा ना भाई वो कितना होगा जी, 81 प्लस 54 इज इक्वल टू 135। भाई टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा हमारे पास 135, भाई 81 जमा 54 जी। मिस्टर अहमद इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन मंथली पेमेंट such that each payment is less than half of the previous payment. If first payment is 10,000, find the amount he may go during his whole life. G. By find the amount he may get during this whole life. By find the amount, आपने amount निकालनी है, he may get during his whole life, by पूरी लाइफ में। भाई मिस्टर अहमद इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन मंथली पेमेंट जी सच दैट ईच पेमेंट इज लेस देन हाफ ऑफ द प्रीवियस पेमेंट। इफ फर्स्ट पेमेंट इज 10,000, फाइंड द अमाउंट ही मे गेट ड्यूरिंग द होल लाइफ। भाई देखें हमारे पास क्या होगा जी, पहले जो है ना वो 10,000, ठीक है जी। फिर क्या होगा जी 2,000, फिर 400। So he payment is less than half of the previous payment. G. Mr. Ahmad is entitled to receive a monthly payment such that each payment is less than a half of the previous payment. If the first payment is 10,000, ठीक है जी, find the amount he get during his whole life. भाई ए हमारे पास क्या है 10,000, रेशियो क्या है 1/2। एस इन्फिनिटी बराबर है ए ओवर 1 माइनस आर। भाई एस इन्फिनिटी बराबर है ए ओवर 1 माइनस आर। तो भाई ए की वैल्यू आके रखी, सिंप्लीफाई किया तो आ गया 20,000। भाई जब सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 20,000 जी। सूरह असर पारा नंबर 30 और आयत 1-3 जी। सूरह असर आयत 1-3 इसका तर्जमा अखलासा। इन आयात के शुरू में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम उठाकर फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम उठाकर फरमाया, यकीनन इंसान खसारे में है, यकीनन इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत करते रहे और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे जी। सूरह असर का खुलासा है जी, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम उठाकर फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है और कहा यकीनन इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वो लोग जो ईमान लाए उनके अलावा, और नेक अमल करते रहे और उन्होंने ईमान लाने के बाद नेक अमल भी किए और एक दूसरे को हक की नसीहत करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत करते रहे और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। जब आप हक की बात करेंगे तो आपको तकलीफें आएंगी, तो उसके बाद एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। सूरह असर इसका खुलासा
अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम उठाकर फरमाया, यकीनन इंसान खसारे में है, यकीनन इंसान खसारे में, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत करते रहे और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।